صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، جیسا کہ آپ نے پہلی ویڈیو سماعت کی ہے کہ امام کعبہ کو کافر کہنے والے لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے مسجد نبوی کے جو امام ہیں ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، نعوذ باللہ وہ بھی کافر ہیں۔ جبکہ میرے بزرگوں، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ آج جو ہے میرے بزرگوں، اپنے آپ کو سچا مسلمان کہلانے والے وہاں جا کر بھی یعنی کہ مسجد حرام، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ میرے بزرگوں چند سرفروش ایمان والے جو اپنے آپ کو بڑے مقرر کہتے ہیں، ان کی وجہ سے عوام الناس گمراہ ہو رہی ہے۔ اسی چیز کو لے کر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آگے کی ویڈیو کل ڈالوں گا، تو میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے۔ مولانا اطہر صاحب جو حق بیان کر رہے ہیں، آپ خود بھی سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے کی ویڈیو کو سماعت کر لیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آئیے آپ آگے کی آڈیو، یہ 14 سے 15 منٹ کی ہے، پوری آڈیو کو سنیے اور جو ہے اس کو آگے سے آگے اپنے گروپ میں دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے۔ سن لیجئے اس آڈیو کو۔ بہت ساری خرابیاں، ضلالت و گمراہیت بسی ہوئی ہے، خباثت بسی ہوئی ہے۔ تو امام کعبہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا؟ ارے اللہ کا گھر ہے وہ، اللہ کے گھر میں اللہ امام کافر رکھے گا 50 سال سے؟ کیسا تو آدمی ہے؟ 50 سال سے وہ نمازی نہیں ہو رہی، 60 سال سے تیرا فتویٰ کیسا ہے؟ ارے 60 سال سے نماز نہیں ہو رہی وہ کعبہ شریف میں تیرے فتوے سے۔ اور رافضی والے رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو حج کو جا رہے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہے گا؟ جو حج کو جا رہے ہیں ان کو منع کیا کرنا پہلے سے کہ وہاں نماز مت پڑھنا، جمعہ مت پڑھنا، وہاں عید مت کرنا، وہاں بقرعید مت کرنا، قربانی مت کرنا۔ وہاں قربانی کرے گا کہ نہیں تو؟ قربانی کا گوشت کسے دے کے آئے گا؟ کیا ساتھ میں لے کے آئے گا ہوائی جہاز میں؟ قربانی کرے گا تو وہاں بھی ارے سارے سب قربانی کرتے ہیں، سارے سنی گوشت انہیں کو دے کے آتے ہیں، دیوبندیوں کو، وہابیوں کو۔ تم جھوٹے ارے سالے تو خود جھوٹا مت کار ہے سالے۔ ازری میں کیوں گئے تھے غسل دینے؟ ازری میں گئے تھے کہ نہیں غسل کعبہ دینے؟ مسلمان سمجھ گئی تو گئے تھے ازری میں غسل دینے؟ کیا کافر سمجھ کے گئے تھے؟ ازری میں کیوں گئے تھے غسل دینے؟ کیوں گئے تھے کعبہ شریف کا؟ ارے وہابیوں کو ہمیشہ کافر مانا انہوں نے۔ ارے تو کافر کی بلاوے پہ گئے تھے، کافر کی دعوت پہ گئے تھے کیا وہ؟ کون؟ کافر کی دعوت پہ گئے تھے کہ مسلمان کی دعوت پہ گئے تھے؟ یہ بتا پہلے۔ ان لوگ کی دعوت میں تھوڑی گئے تھے۔ نہیں، کافر کی دعوت پہ گئے تھے کہ مسلمان کی؟ اس کی نہیں، جو بلایا تھا غسل دینے وہ کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ جس نے بلایا تھا، آپ کس نے بلایا تھا یہ پتہ لگانا پڑے گا پہلے۔ اب پتہ لگائے گا تو؟ بات نہیں تو اچھا، ایسا بنا پتے کے ہی چلے گئے تھے وہ؟ تمہارے ازری میں کیا تجھ سے چھوٹے عالم تھے؟ ازری میں کو دنیا جانتی ہے کتنے بڑے وہ عالم تھے، کیا ایسے ہی چلے جائیں گے؟ وہ مسلمان سمجھ کے گئے تھے ان کو کہ مسلمان مجھے بلا رہے ہیں، مومن مجھے بلا رہے ہیں۔ وہاں پر جا کے انہوں نے مہمان نوازی کی، وہاں پر جا کے انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، ان کو مسلمان سمجھا۔ وہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا کیا؟ کون؟ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا، وہ جتنے لوگ مر رہے ہیں جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں، بہت سے جنت المالا میں دفن ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ جنت البقیع میں بھی دفن ہوگا، وہاں بھی تو کافر ہی ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہاں جنت البقیع میں دفن ہو ہی کیسے سکتا ہے وہ؟ خبیث آدمی کیسے دفن ہو جائے گا؟ وہی دفن ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ تجھے کیسے معلوم کہ وہاں بھی دفن ہوا؟ پھر جو مر رہے ہیں ان کا جنازہ انڈیا میں لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ جو وہاں مدینہ شریف میں مر رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ دفن ہو کہ انڈیا میں بلائیں؟ میں کہہ رہا ہوں کیا جنت البقیع میں بھی دفن ہوگا۔ ارے یہ بتا کہ جو مدینہ شریف میں مر رہا ہے وہ وہاں پر اسے بلانا چاہیے انڈیا میں کہ وہیں دفن کر دینا چاہیے وہابیوں کے ساتھ؟ بتا۔ کون؟ جو وہ انڈیا میں مرتے ہیں، انڈیا سے حج کو جا رہے ہیں، مکے میں مر رہے ہیں، مدینے میں مر رہے ہیں، وہاں ان کی نماز جنازہ وہی لوگ پڑھاتے ہیں، امام کعبہ پڑھاتا ہے۔ اب بتا۔ کعبہ پڑھانے سے اس کے جنازہ ہو گیا؟ نہیں، یہ بتا وہ جنازہ انڈیا میں بلانا چاہیے کہ وہیں دفن کر دینا چاہیے؟ ارے میں کہتا ہوں کہ وہاں۔ ارے تو کیا کہتا سالوں کے اندر
यहूदियत है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जो मक्के शरीफ में मर रहा है, मदीना शरीफ में मर रहा है, उसको यहाँ इंडिया में बुलाना चाहिए दफनाने को, वहीं दफन करना चाहिए। कहीं मरे वहाबी ये काफिर ही रहेगा। अरे जो इंडिया का सुन्नी मरता है मक्के शरीफ मदीना शरीफ में, उसका क्या करना चाहिए? वहाँ दफन करना चाहिए कि इंडिया में बुलाएं? जहाँ जहाँ दफन हो, सुन्नी मुसलमान जहाँ भी दफन हो वो मुसलमान ही रहेगा। अरे तू तो कह रहा है कि वहाँ सब वहाबी है, वहाँ सब वहाबी माना, तो तुम वहाबियों के साथ दफन करवाने को क्यों कह रहा तू? फतवा कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। इससे वहाबी का मुसलमान होना साबित हो गया। अरे तू ये बता के तू कह रहा है कि वो सब वहाबी हैं और उनके साथ तू दफन होने की बात भी कर रहा है, हाँ फिर क्या होगा? होगा क्या माथे पे लिखा हुआ है कि वहाबी है? तू क्या तेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई थर्मामीटर है कि सबको तू नाप लेता है कि ये काफिर है, ये मुसलमान है? तेरे पास ऐसा कोई अल्लाह ने थर्मामीटर पावर हाउस दिया तुझे कि तू इंडिया से देख लेता दूरबीन लगा के मक्के के शरीफ के लोग काफिर हैं, मदीना शरीफ के लोग काफिर हैं, वहाँ के इमाम काफिर हैं? क्या तू मिल के आया इमाम काबा से? मिला है कभी? तू मुलाकात की है कभी तूने? है तुम्हारी मजाल है कि तुम अरे फतवा लगाने को तो मुफ्ती निजामुद्दीन पे लोग फतवा लगा रहा है। यासीन अख्तर मिसबाही को सुलह कुल्ली ठहरा दिया अनीस आलम सीवानी ने। आई ने सुलह कुल्लियत लिखे कि यासीन अख्तर मिसबाही का इलाज तो दारोगा जहन्नम करेगा। अरे बोल, अनीस आलम ने सुन्नी को गुमराह ठहराया कि नहीं? इंडिया में मुफ्ती निजामुद्दीन को गुमराह ठहराया कि नहीं? चलती ट्रेन में नमाज जायज बता दिया है? या कौन से फतवा नहीं लग रहा? मोहम्मद अहमद मिसबाही को सुलह कुल्ली ठहरा दिया, मौलाना अब्दुल मुबीन नोमानी को सुलह कुल्ली ठहरा दिया, मुफ्ती बदर आलम को दावत इस्लामी की हिमायत पर सुलह कुल्ली ठहरा दिया है? से वहाबी तुम्हारा बाप हो गया। अरे तो बता दिए ये सब क्या हो रहा है, ये दुनिया में क्या हो रहा है? और इदरीस रज़ा साहब ने जो है कि इनको सुलह कुल्ली ठहरा दिया था अजहरी मियाँ को, बोल पीलीभीत वालों ने, जरताब रजा ने, इदरीस रजा ने, शमाइल रजा ने, बोल अजहरी मियाँ को सुलह कुल्ली ठहराया। मुसलमान कैसे बोल रहा है? अरे तू ये बता कि तूने क्या सर्टिफिकेट दे दिया वहाबी का? लिखा माथे पे लिखा पढ़ लिया तूने कि मुसलमान है काफिर है? क्या तू पढ़ने या कोई इंडिया में तेरे कलकत्ते में कोई आदमी मारा जाएगा तो तू पूछेगा कि ये मुसलमान मरा था, सुन्नी मरा था कि देवबंदी मरा था? कौन मरा था? सही बात। सुन्नी को हम लोग अरे चल, आम आदमी कलकत्ता में किसी मुसलमान को मार दिया गया, कोई मुसलमान मर गया, तो अब क्या तू पूछेगा ये देवबंदी था कि सुन्नी था, कौन था? या पूछेगा कहीं? तुम्हारे ऐसा कहने से देवबंदी अरे तुम लोगों की वजह से आज देवबंदियत उरूज पर है, आज तुम लोग नदवियत उरूज पर है। जामिया घर मिस्र के तमाम उलमा नहीं जानते कि इमाम काबा काफिर है, फिर जामिया घर क्यों जाते हो पढ़ने? वहाँ के सारे उलमा नमाज पढ़ते हैं और सब के सब मुसलमान मानते हैं काबा शरीफ के इमाम। अरे इमाम काबा काफिर है। अरे तो जामिया घर के उलमा को तू क्या कहेगा? जामिया घर के उलमा जो नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर, उन्हें उनके बारे में क्या कहेगा? तुम झूठे हो, जो मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ते हैं, झूठे। अरे जामिया घर के सारे उलमा नमाज पढ़ते हैं। मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब जो जामिया अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वहाँ मैंने कोई ऐसा फतवा नहीं सुना, 4 साल तक मैं पढ़ा, कभी ऐसा फतवा नहीं सुना। अरे तुम्हारे बाप दादा है, तुम ऐसा बोल रहे हो? ये बता तू पहले कि जो काबे शरीफ में मरता है मक्के शरीफ में, वो कहाँ दफन किया जाएगा? कहीं दफन हो, लेकिन मुसलमान है तो मुसलमान ही माना जाएगा। वो उसकी नमाज जनाजा क्या इंडिया से तेरा बाप जाएगा पढ़ाने काबे शरीफ में? मज़हब हुकूमत के इमाम लोग पढ़ाते हैं नमाज। मौलाना हनीफ साहब का इंतकाल हुआ जो वहाँ रहते थे, उनकी नमाज भी वही काबे शरीफ के इमाम ने पढ़ाई थी। हाँ तो पढ़ा तो क्या हुआ? तो बोल आप बोलना, काबे शरीफ के इमाम ने पढ़ाई, जो भी मरता है उसकी नमाज तो वहीं के लोग पढ़ाते हैं। अरे पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद भी वहाबी रहेगा ना कि मुसलमान। अरे तो पढ़ा दिया था, अब उसके पीछे जिसने नमाज पढ़ी वो क्या हुआ? उसके ऊपर कौन सा फतवा लगा है? अगर उसको मुसलमान समझ, और जब तू इतना ही अच्छा था तो अल्लाह ने तेरी कौम के बिरादरी के लोगों को मक्के शरीफ मदीने शरीफ में इमाम क्यों नहीं रखा? अगर उसको मुसलमान समझ नहीं, जब तू कह रहा है कि 60 साल से नमाज नहीं हो रही, तू ये मान रहा 60 साल से काबे में नमाज नहीं हो रही? हाँ तो क्या हुआ? नहीं ये बता, ये 60 साल से नमाज नहीं हो रही, नादान हो रही, ये मान रहा है इस बात को? अरे सैकड़ों साल से वहाबी क्या कब्जा है उस पर? अरे लाहौल, मैं कह रहा हूँ नमाज हो रही है कि नहीं 60 साल से वहाँ पर? वहाबी की नमाज होती है? अरे वहाबी की बात मत कर तू। मैं कह रहा हूँ वहाँ के इमाम के वहाबी कहाँ से कह रहा तू मिला क्या इमाम से? वहाँ कभी मुलाकात किया तूने इमाम से? वहाँ का बादशाह कितना अदब करता है रोजा रसूल का? अगर ऐसा होता तो रोजा रसूल का कितना अदब होता है? तुझे मालूम है खिलाफ काबा गिलाफ डाला जाता है, बेहतरीन गिलाफ डलता है, बेहतरीन गिलाफ, और बड़े अदब के साथ वो गिलाफ पेश करते हैं, ऐसे वैसे नहीं करते। गिलाफ डालने से मुसलमान हो गया। अरे तो ऐसे क्या तू मुसलमान कभी मुसलमान नहीं मान रहा, कभी मुसलमान मान रहा है? जामिया घर वालों को क्या मान रहा है? वो तो पहले ही खड़े हो जाते हैं, वो तकबीर से पहले खड़े होते हैं। जुमे की अजान अंदर होती है, वहाँ कब्रिस्तान में अजान नहीं देते वो लोग
हैं? वहाबी रसूल पाक का दुश्मन गुस्ताख काफिर होता है ना कि और मुसलमान मुफ्ती होता है? शेर बिहार खुद मुसलमान मानते थे इमाम काबा को, मुफ्ती असलम साहब, हाँ। उनका लड़के। नहीं, तुम झूठे नंबर वन हो। सुन क्या झूठा मूठा है। उलमाए फरंगी महल मुसलमान मानते हैं, उलमाए फुलवारी शरीफ मुसलमान मानते हैं, उलमाए बदायूं मुसलमान मानते हैं, मुफ्ती सैयदुल हक साहब। तो उनके मानने से मुसलमान हो गया। अरे तो तेरे मानने से क्या काफिर हो जाएगा? उनके मानने से मुसलमान नहीं होगा क्या? तेरे मानने से हम काफिर मान लेंगे? हैं? तेरे खुद पता नहीं तू है क्या? तेरे अंदर यहूदियत है, तेरे अंदर नसरानियत है, तेरे अंदर मजूसियत है। अगर कोई ईसाई मुसलमान होगा तो तू उससे कहेगा इमाम काबा काफिर है, तो उसका दिल क्या कहेगा कि यार ये कैसे मुसलमान है, ये कैसे मुसलमान है? अभी तो हम तो इस्लाम लाए, हमें तो मालूम है काबे शरीफ का इमाम है, इसके पीछे नमाज इतनी सवाब है, 1 लाख का सवाब है, 50,000 का मदीने में सवाब है, और ये कह रहा है काफिर है। तो जो ईमान लाने वाले ईसाई हैं, बड़े बड़े जो ईसाई ईमान ला रहे हैं, वो तो वापस हो जाएंगे तुम्हारे ऐसे फतवों से, तो इस्लाम पे फिर जाएंगे कि यार ये क्या बकरा है कि काबे में नमाज नहीं होगी, क्या ना मदीने शरीफ में नमाज नहीं होगी, तो क्या आसमान में जाके नमाज होगी, क्या समंदर में जाके नमाज होगी, क्या पहाड़ों पे जाके नमाज होगी? है अरे तेरे अंदर जहालत बसी, साले खबासत बसी है। तू साले इलाज कर अपनी खबासत का, इलाज का। लाहौल वो झूठा साले तू मक्कार है। वो साले तेरे ऊपर फतवा लगा दिया मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने कि नहीं? बोल, ज़ियाउल मुस्तफा मुहद्दिस कबीर का फतवा तेरे ऊपर है कि नहीं? है उसका भी फतवा यही है कि वो आगे काफिर है। अरे तो काफिर है तो ये इमाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मस्जिद नबवी का इमाम को तुझे मालूम है? तुम मिल के आया है आला हजरत ने यजीद को काफिर कहा? क्या इस्माइल दहलवी को काफिर कहा? आला हजरत ने इस्माइल दहलवी को काफिर कहा था? तमहीद इमाम में आला हजरत ने लिखा था हम इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहेंगे, अगर कोई कहता है तो हम मना नहीं करेंगे। यजीद के बारे में कहा हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, इमाम आजम ने नहीं कहा। तो क्या यजीद से बड़ा खबीस इमाम है काबे शरीफ में? मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के रसूल की मस्जिद है, मस्जिद नूरुद्दीन जंगी को बशारत देकर अल्लाह के रसूल ने दोनों को गिरफ्तार करवा दिया था। तो क्या अल्लाह के रसूल इमाम को नहीं हटवा सकते? पावर नहीं क्या अल्लाह के रसूल को इतना? आला हजरत ने क्या कहा? खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार में। हाँ, क्या अल्लाह ताला अपने हबीब की रूह को तकलीफ देगा? क्या इमाम काफिर रहेगा तो अल्लाह के रसूल की रूह को तकलीफ होगी कि नहीं? बोल, उस इमाम का अकीदा क्या है? वो मानता है क्या? अरे ये बता, मस्जिद नबवी का अगर इमाम काफिर हुआ तो रसूलुल्लाह की रूह को तकलीफ होगी क्या नहीं? क्या तकलीफ होगी क्या नहीं कि मेरी मस्जिद का इमाम काफिर है? तकलीफ क्या होगी? वो तो वो मुसलमान हो जाएगा वहाबी। अरे ये बता तकलीफ होगी कि नहीं? कि अल्लाह को गवारा है रसूलुल्लाह की रूह को तकलीफ देना? कुरान में है इन्नल्लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। बेशक जो अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ देते हैं अल्लाह की लानत है पर दुनिया में और आखिरत में। अल्लाह तो कुरान में ऐलान कर रहा है। अरे तू कुरान पढ़, तू हदीस पाक पढ़, तू इन चक्करों में मत पढ़। ये जो आजकल के लोग फतवे दे रहे हैं, ये इन लोगों के चक्कर में पड़ेगा तो फिर तो तू तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कारी रही को चंद मिनट बैठने पे गुमराह करार दे दिया गया उलमाए कौंसिल में। बोल, गुमराह करार दिया कि नहीं कारी रही को? जो इमाम मुफस्सिरीन में पहले नंबर का इमाम है कारी रहीर। हिंदुस्तान में सुन्नियों में जो मुफस्सिर आजम है, इतना बड़ा कोई मुफस्सिर नहीं अभी सुन्नियों में कारी रहीर के बराबर। कारी रहीर जो इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद के इमाम बम्बई के, उससे बड़ा कोई मुफस्सिर है सुन्नियों में? सुनिएगा तुम कौन मुफस्सिर है कारी रहीर के बराबर? बता कौन मुफस्सिर है? ये कारी रहीर है। दूसरे नंबर पे मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब इलाहाबाद वाले हैं। मुफ्ती मुजाहिद हुसैन का नंबर आता है मुफस्सिरों, बाकी तो कोई सुन्नी मुफस्सिर ही नहीं। और उस्तादों में देखा हदीस में तो उस्तादुल उलमा फाजिल कबीर हजरत मौलाना मुफ्ती आकिल साहब मंदर इस्लाम बरेली शरीफ है, उन्होंने मंदर इस्लाम को चमका दिया। वो मुदब्बिर है, मुफक्किर है, मुहक्किक है, वो ऐसे आलिम। और सानी आला हजरत मुफ्ती अय्यूब साहब मुफ्ती आजम मुरादाबाद है। मुफ्ती मारूफ रजा मिसबाहुन नईमी ने मुझे कहा कि आला हजरत के बाद सबसे बड़ा काम मुफ्ती अय्यूब साहब ने किया है मसले मसाइल का, फतवों का। हम ऐसे आलिमों को मानते हैं। मुफ्ती अय्यूब साहब मुरादाबाद, सानी आला हजरत बकौल मुफ्ती मारूफ रजा मिसबाहुन नईमी, जो मुहक्किक है मिसबाहुन नईमी, मुदब्बिर है मिसबाहुन नईमी। और मिसबाहुन नईमी का मामला इस वक्त इंडिया के अंदर आलिमों में सबसे जबरदस्त है, बहुत भारी आलिम है वो। उन्होंने कहा कि आला हजरत के बाद सबसे बड़ा काम मुफ्ती अय्यूब साहब ने किया है मसले मसाइल का। उनके नायब मुफ्ती सुलेमान साहब है, वो भी बहुत बड़े मुहक्किक हैं। और जामे नईमिया की जान है मुफ्ती सुलेमान साहब। और गुलाम यासीन साहब भी बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े मुहक्किक हैं। ऐसे आलिम ऐसे फतवे नहीं देते हर किसी को काफिर, ये काफिर वो काफिर। तू तो इन लोगों से सबक सीख, जाके पढ़ मुफ्ती अय्यूब साहब के पास, मुफ्ती गुलाम यासीन साहब के पास जामे नईमिया मुरादाबाद, मुफ्ती सुलेमान साहब के पास, वो भी ऐसे फतवे नहीं देते जैसे तू दे रहा है। अरे लानत हो तेरे ऊपर, तेरे अंदर नफरानियत है, यहूदियत है, मजूसियत है। मैं तुझसे फिर बात करूंगा, फिर मुनाजरा करूंगा। रुक जा, मुझे एक जगह जाना है, मुझे एक मेहमान आए लेने के लिए आए हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
میں यहाँ पर पीरी मुरीदी भी करता हूँ। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम। मेरा सिलसिला कादरिया बरकातिया है। मैं सदरुल शरिया के खलीफा का खलीफा हूँ। खबीर साले तू है कहाँ, मैं कहाँ हूँ? मैं सदरुल शरिया के खलीफा का खलीफा ऐलान करता हूँ कि इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाए, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज हो। खाली एहतिमाल में फतवा नहीं लिया जाता। फुक़हा का कौल है कि इज़ा जाल एहतिमालो बतलल इस्तिदलाल, जब एहतिमाल आता है तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। ये फुक़हा का कौल है। वह एहतिमाल में खाली तेरे एहतिमाल के अंदर ये फतवा नहीं है वो काफिर है, वो काफिर है। एहतिमाल में फतवा नहीं है। फुक़हा फरमाते 100 कौल है, किसी के कौल में 100 मतलब है, 99 कुफ्र के निकलते, एक इस्लाम का। तो आला हजरत ने लिखा है कि इस्लाम का मतलब ही मुराद लिया जाएगा। बल्कि मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमान ने तो 1000 लिखा है। 1000 मतलब निकलते हैं, 999 कुफ्र के, तो एक मतलब इस्लाम का निकलता है। तो एक ही मतलब इस्लाम का लिया जाएगा जब तक कि सभी कुफ्र उससे सादिर ना हो या मालूम ना हो कि इसकी मुराद कुफ्री थी। तो तू कभी इमाम काबा से मिला, मस्जिद नबवी के इमाम से मिला, मतलब पूछा उनकी बातों का, या ताबीर तूने निकाल के देखी? तूने तो बिना ताबीर निकाले ही काफिर कह दिया, बिना ताबीर की कह दिया कि काफिर है, एहतिमाल में ही कह दिया काफिर। और फुक़हा कहते हैं जाल एहतिमाल बतलल इस्तिदलाल, जब एहतिमाल आता है तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। कैसे तूने काफिर कह दिया? अरे तू अपने बाप को काफिर कह सकता है क्या? जब तू अपने बाप को दादा को काफिर नहीं कह सकता तो इमाम काबा को कैसे काफिर कह रहा है? वो अल्लाह के घर का इमाम है, तुझे शर्म आना चाहिए। मस्जिद नबवी का इमाम है। अरे तेरे अंदर नसरानियत है, यहूदियत है, मजूसियत है। पढ़ कुरान करीम पढ़, हदीस पाक पढ़, जब तेरा कल्ब रोशन होगा फिर तू काफिर कहने से गुरेज करेगा।